I qualified 2 times finals, and this is my third time. And I'm going to face my So 2 times you have already faced interview. सब निकल जाएगा। सब निकल जाएगा। बट तेरे पास अगर कोई होगा, तेरे पास अगर कोई होगा, वो तू होगा। तेरे साथ कोई चलेगा, तेरे साथ कोई चलेगा, वो तू चलेगा। Yes, please. Now you have left one thing, closing the door. संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हम सब इक्वल है? अब्रॉड स्टडीज, हाँ, जैसे लोग कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र जो हमारा है बहुत सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित तरीके से यहाँ रह सकते हैं। फिर हमारे अंदर ये ट्रेंड ऐसा क्यों आ रहा है कि अब्रॉड स्टडीज यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ख्याल से। I would like to welcome now Mr. Shahenshah. Please come and introduce yourself. Sadiki, I come from Champaran, Bihar. I have pursued my BTech in 2013. Then after I came from Krem, Delhi to prepare IAS. I qualified 2 times mains, and this is my third time. And I'm going to face the So interview. 2 times you have already faced interview. Yeah. 2 times already you have faced interview. 2 बार आपने इंटरव्यू दिया हुआ है। 1 time. अच्छा, 1 time you have given interview. अच्छा, fine. Now it's going to be second time. And hope so कि इंशाल्लाह you are going to qualify it. Yeah, I have been also a journalist in ABP News for You have been a journalist in ABP News as well 3 years. for 3 years. After doing my mass comm from Jamia Millia Islamabad. Great. So you have done your mass comm, you have done okay. So you have also qualified mains examination, and now you are preparing for interview, right? I had come here to remove my hesitation. New people. चलिए ठीक है। Person isolated me from all the world. So now I want to face this world and make some excitement. And I want to say one thing. I agree with your conclusion. Only idea can change the life. Right. You say idea can change the life, but I want to say only idea can change. Only idea can change. And if you see, whole world is the idea of the God. Right. Everything is only idea. Right. Absolutely. So Great. Your speeches inspired me and recalled me all the time. Thank I struggled, and Thank really, only idea can change. Thank you so much. Okay, I'll do one activity. कि कहीं ना कहीं आपके जो है कि फेस कांप रहे हैं और चीजें हैं, तो कोई बात नहीं। अब देखिए, इससे हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि समवेयर वी हैव दिस प्रॉब्लम। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स ऐसी होती है, और मिस्टर शहंशाह हैज बीन द चैंपियन वी कुड से इन स्टडीज, पढ़ाई लिखाई में, बट स्टिल कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है वो आपको Personality is totally different thing. वेरी डिफरेंट, राइट, It doesn't come from books. राइट, You have to face the new people. You have to. exactly meet Yeah. new people, interact. Okay, let's do one thing. Now you're going to take your hands out of the pocket, and Yeah. I am going to do something, and you have to do the same thing, right? Okay. Okay. So good morning, ladies and gentlemen. You have to just address these people. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ladies and My gentlemen. name is Abdullah. My name is Shahenshah So Siddiqui. Today, I would like to talk about I'd like to talk about that I'm here. that I'm here. अब देखिए, मैं अपने साउंड को थोड़ा सा फ्लैट किया, अपने साउंड को नीचे ले गया, जो आपको आप कह रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन में आपको Yeah. So that I'm here. That I'm अब here. आपको यहाँ मिलेगा that I'm here. That I'm here. So today Today, I would like to say that I like to say that I am really so privileged and happy really so privileged and happy to be the part of to be the happiness. part of the happiness classes. You know, And- this is हाँ, वो आएगा, वो Sure. जाएगा बोले तो, right? Yeah. So I want to say that I want to say that I have a complete. Yes, please. Now you have left one thing, closing the door. Once more. May I come in, sir? Yes, please. Good morning, sir. Good one. Now you have greeted. आपने जो greeting की है वो motion में की है. मोशन में हम ग्रीटिंग कभी भी नहीं कर सकते, राइट? फिर से May I come in, sir? यस प्लीज.
Good morning, sir. Good morning. Yes, please have a seat. Thank you. Welcome. Okay. So the body portion will be same as this, right? And let's go ahead. Okay, Mr. Shahenshah, introduce yourself. जमाने की तरक्की को देखकर, इस जमाने की तरक्की को देखकर, इस जमाने की तरक्की को इस देखकर जमाने की तरक्की को देखकर मुझे खुद पर शक होता है। मुझे खुद पे शक होता है। मैं कभी कभी ये यकीन नहीं कर पाता कि ये जमाना किस तरह से आगे बढ़ रहा मैं है। कभी कभी यकीन नहीं कर पाता कि जमाना किस मैं कभी कभी यकीन नहीं कर पाता और कि थोड़ा स्लो करेंगे, थोड़ा स्लो करेंगे। फास्ट। मैं कभी कभी यकीन नहीं कर पाता कि ये जमाना किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। मैं कभी कभी यकीन नहीं कर पाता कि जमाना कैसे तेजी से जमाना आगे नहीं, जमाना 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 हाँ, जमाना जा जेड होगा ना सर। हाँ, जेड जा ये जमाना जा। किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। भारत हाँ, भारत देश, ये दुनिया। हाँ, एक दिन भारत देश दुनिया के फलक पे चमकेगा और जितने लोग गुर्बत में जी रहे हैं उनकी जिंदगी बेहतर होगी। मेरे दोस्तों एहसास करो इस दर्द को। सीधे बोल लीजिए। ये वाला अच्छा है बोलिए। ठीक है। हाँ, अब अपनी आंखों में ही एकदम देखिएगा। हाँ, शहंशाह। शहनशाह है या शहंशाह है? शहनशाह। मिस्टर शहंशाह, आप न्यूज रिपोर्टिंग में गए, जर्नलिज्म में गए, पीजीडीएम किया आपने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हम सब इक्वल है? अब्रॉड स्टडीज, हाँ, जैसे लोग कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र जो हमारा है बहुत सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित तरीके से यहाँ रह सकते हैं। फिर हमारे अंदर ये ट्रेंड ऐसा क्यों आ रहा है कि अब्रॉड स्टडीज यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ख्याल से। इसके बारे में आपको क्या राय है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर शहंशाह। यस सर। बताइए अपने बारे में कुछ। सर, मैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज से आता हूँ। मैंने अपनी बुनियादी तालीम अपने ही शहर से पाई है। उसके बाद मैं बीटेक करने के लिए चेन्नई चला गया और बीटेक करने के बाद मैं फिर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में पीजीडीएम की डिग्री की और पीजीडीएम की डिग्री करने के बाद मैंने 3 साल तक एबीपी न्यूज़ में एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया। पत्रकारिता और शहंशाह और पत्रकारिता। सबसे पहले तो मुझे शहंशाह का मतलब बता दीजिए। सर, शहंशाह का शाब्दिक अर्थ होता है शाहों का शाह। शाहों का शाह। तो अपने आप को आप महसूस करते हैं कि आप शाहों के शाह हैं? सर, मैं जब कभी कभी बहुत आनंदित होता हूँ तो महसूस करता हूँ। अच्छा, आनंदित होते हैं तो ऐसा लगता है। तो वो शाहों के शाह लगता है या खुद की जिंदगी के शाह लगते हैं? मैं अपनी ज़िंदगी का शाह लगता हूँ। अच्छा, शहंशाह, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आप किस बात के शहंशाह बनना चाहते हैं? सर, अगर मैं सिविल सेवा में गया तो जहाँ जाऊँ वहाँ के जो लोग हैं उनके दिलों का शहंशाह बनना चाहता हूँ। क्या बात है। तो क्या आपको लगता है कि लोगों के दिलों का शहंशाह बनना इतना आसान आजकल हो गया है? नहीं सर, आसान तो नहीं है। इतनी आसानी से दिलों पर राज तो नहीं किया जाता है, टाइम लगता है। ठीक है मिस्टर शहंशाह, आप न्यूज़ रिपोर्टिंग में गए, जर्नलिज्म में गए, पीजीडीएम किया आपने, बट ये सफ़र आप जो है जर्नलिज्म में जाकर, क्योंकि उसको चौथा स्तंभ माना जाता है हमारे देश का, उसके बाद आप जो है यूपीएससी की तरफ मूव ऑन किए, उसका सफ़र कैसा था ज़रा बताइए, जर्नलिज्म का सफ़र। सर, जर्नलिज्म का सफ़र भी आसान नहीं था। 3 साल मैंने काम किए तो बहुत छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम करने पड़े। तो उस दौरान भी जो मेरी जो ट्रेनिंग थी जामिया में वो काम आए और बहुत से चैलेंजेस भी आए पत्रकारिता करते हुए। टीआरपी के चैलेंजेस, अपने कैरियर में प्रमोशन के चैलेंजेस, बहुत से चैलेंजेस थे जो मुझे वहाँ भी फेस करने पड़े। तो आसान नहीं रहा सर वो भी सर। क्या आपको लगता है न्यूज़ चैनलों का सिर्फ एक ही माध्यम या एक ही पर्पस हो चुका है टीआरपी बटोरना और अपने बिजनेस को बढ़ाना? क्या ऐसा ही हो चुका है हमारा समाज? सर, मैं एकमात्र माध्यम तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा जो उनका उद्देश्य है कि कैसे से कैसे टीआरपी बटोरा जाए। अच्छा, तो कैसे से कैसे टीआरपी बटोरा जाए, इसका मतलब भी आप भी उसी के एक सह थे, एक उसी के आप पार्ट थे, और आप अपने आप को ये कहना चाहते हैं कि आप बिजनेस विजनरी हो गए थे?
बिजनेस माइंडेड हो गए थे जब आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, और अब आप सिविल सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं जहाँ पे आपको सोशल एक्टिविस्ट होना पड़ेगा, सोशल वर्कर होना पड़ेगा। दोनों को आप मर्ज कैसे करेंगे, माइंडसेट को कैसे टैकल करेंगे? सर मुझे लगता है कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है नहीं। जब हम पत्रकारिता में जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में पब्लिक की सेवा या पब्लिक के हकों की बात, समस्याओं की बात ही रहती है। दूसरी बात, जब मैं इधर आने का इसलिए सोचा कि मुझे लगता है कि मेरा जो एटीट्यूड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। मुझे सॉल्यूशन खोजने में, सॉल्यूशन के लिए काम करने में ज़्यादा रुचि है। अच्छा। और पत्रकारिता का काम थोड़ा सा दूसरा है, समस्याओं को दिखाना, उनकी जो काम कर रही है सरकार उसकी आलोचना करना। तो मेरी रुचि उधर मुझे लगी कि कम है, तो मैं फिर सोचा कि लाइफ में थोड़ा लेस एलेबोरेशन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, लेस एलेबोरेशन। ओके। अच्छा, एक चीज़ आईएएस और यूपीएससी को लेकर बहुत चलती है, और ये चलता है कि गर्लफ्रेंड पटाकर यूपीएससी क्वालिफाई करें या बिना गर्लफ्रेंड के करें। जैसे एक मूवी आई 12th फेल, वहाँ पे लड़की है वो खुद कह रही है तुम आईएएस क्रैक कर लो। एक मूवी आई थी शादी में ज़रूर आना, और वहाँ पे जो है लड़की से जब लड़की धोखा दे देती तो आईएएस बन जाता है। इसको कैसे समझा जाए? सर इसको ऐसे ही समझते हैं कि अगर जैसे जो 12 पास मूवी है, 12 फेल जो मूवी है, तो अगर वैसी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए जो आपके सपनों को अपना सपना बना ले या आपके सपनों में हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, तो रास्ते आसान हो जाते हैं। लेकिन वही बात है कि और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल कि आप कैसे आदमी के साथ किस समय कैसे रिश्ते में पड़ते हैं। अच्छा, आपका रिश्ते का जो सिलेक्शन रहा है वो कैसा रहा है? क्या आपने भी सेलेक्ट किया है रिश्ता कभी अपने लिए? यस सर, किया है। कुछ रिश्ते अच्छे रहे, कुछ बहुत बुरे रहे। मतलब आपके पास कई गर्लफ्रेंड्स रही? नहीं, गर्लफ्रेंड्स उस टर्म में मैंने नहीं बताया सर, मैंने रिश्ते के टर्म बताया था। गर्लफ्रेंड्स भी रही है, रहे हैं। कई नहीं, कई मतलब इतने भी नहीं कि काउंट ना किया जा सके। मतलब 14-15 सिंगल डिजिट। इन सिंगल डिजिट, हाँ ठीक है। तो उसमें भी कुछ बहुत अच्छे रहे जो आज तक मेरे दोस्त हैं, जैसे ब्रेकअप होने के बाद भी। तो फिर तो हम आपको एक धोखेबाज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कई गर्लफ्रेंड्स रखी, सिंगल डिजिट में रखी, फिर भी तो कई रखी। बट वन एट अ टाइम। तो वन एट अ टाइम फिर उसको आपने डिच करके फिर वन एट अ टाइम किया? तो डिच नहीं किया, किसी से पूछ सकते हैं, मैंने किसी को डिच नहीं किया या सामने वाले ने मुझे डिच नहीं किया। होते हैं लाइफ में परिस्थितियां कभी ऐसे बन जाती हैं कि जैसे आप साथ आते हैं वैसे आपको अलग भी होना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को डिच किया या किसी ने मुझे डिच किया। अच्छा, ठीक है। मिस्टर शहंशाह, अगर आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट का डीएम बना दिया जाए और वहाँ पे जो है कि अचानक एक दंगा सा हो जाए, उस वक्त आपका कदम कैसे उठेगा? सर सबसे इसमें जो होना चाहिए कि जब दंगा फैल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर उस वक्त टेंशन बहुत ज़्यादा होता है संप्रदायों में। तो सबसे पहले तो उस टेंशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए जो भी आप एक काम कर सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप पुलिस फोर्स में हैं या आईएएस ऑफिसर हैं तो सबसे पहले 144 लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो सोशल मीडिया है इस पे निगरानी रख सकते हैं कि कोई हेट स्पीच या कोई ऐसे सामग्री जो नफरत फैलाते हों उनका प्रसारण तेज़ी से ना हो, क्योंकि आज स्पीड से वो ज़रूरी है। और तीसरी बात सर कि इसमें जो दोनों समुदायों के जो धार्मिक नेता हैं या जो दोनों धर्मों या दोनों पक्षों के जो सम्मानित लोग हैं उनके साथ बातचीत करके अपील कराई जा सकती है शांति के लिए। अच्छा। ये सब प्राथमिक कदम होंगे। इसके बाद तो आप तो अपनी कम्युनिटी का फेवर करेंगे? नहीं सर, मैं संविधान का फेवर करूँगा। जो संविधान में जो बात कही गई है उसी पे फेवर करना। उसमें उस वक्त तो सर तत्काल में किसी को आप फेवर कर भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आपको उस दंगे को रोकना है। क्या आपको डिनोट करना ज़्यादा सही है या हमें डिनोट करना ज़्यादा सही है? या मुझे, जैसे आप ये डिनोट कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते,
तो आपको डिनोट करना सही है या हमें डिनोट करना चाहिए, हमें या मुझे या मैं उस वक्त और कुछ कर भी नहीं सकता। सबसे पहले तो दंगा रोकने की जो चैलेंजेज हैं, तो पहले तो उसको रोकना चाहिए। उसके बाद जो न्याय होगा वो तो कोर्ट करेगी और उसका प्रोसेस उधर कोर्ट में चलेगा, तो न्याय तो कोर्ट से मिलेगा। तो हमें तो बस चैलेंजेज ये है कि कैसे पहले दंगा रोका जाए। क्या आप डायरेक्ट ये आदेश दे देंगे 144 लगाने का कि दंगा हुआ कहीं पे आपने 144 धारा लगा दी वहाँ पे? अगर ऐसा महसूस हो कि सिचुएशन सामान्य नहीं है और जान माल की ज़्यादा क्षति हो सकती है, तो मुझे लगता है कि मैं फ़ौरन 144 का ऑर्डर जारी कर दूंगा। अच्छा, और उसको गर्दन पे थोड़ा सा, गर्दन ये हाँ, ओके, ठीक है। तो मिस्टर शहंशाह, जैसे कि आपके उनके दिलों के शहंशाह बनना चाहते हैं, 144 लगा के आप दंगों को रोकने की कोशिश करेंगे। गर्लफ्रेंड्स आपके पास काफ़ी रही और जो है कि आप न्यूज़ रिपोर्टिंग में रहें। ये आजकल फिलॉसफी का, दर्शन शास्त्र का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि लोग फिलॉसफर बहुत बनना चाहते हैं। कुछ ऐसे फिलॉसफर्स के नाम बताइए जिनके कुछ कोट्स आपके दिलों में अभी भी जिंदा हो। सर, मुझे अभी फ़िलहाल तो रूमी का एक कोट याद आ रहा है, जो मैं सुबह ही पढ़ के आया था कि ऐसे जियो कि जैसे सारी दुनिया तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अच्छा, तो पॉजिटिविटी आप में अंदर आ जाती है। तो अभी तो बस ये याद आ रहा है। वैसे बहुत से कोट्स हैं, बहुत से लोगों के दृष्टिकोण हैं जो मेरे लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आप मुस्कुराते कम है, मैंने सुना है। हाँ, कम मुस्कुराते। क्यों? पता नहीं सर, कहाँ क्यों नहीं। तो क्यों मतलब ज़िंदगी, कहते हैं ना, ज़िंदगी आपने जैसे कहा कि आप ऐसे जियो कि जैसे लगे दुनिया आपके लिए दुआ कर रही हो, जी रही हो, मतलब तो फिर हमें मुस्कुरा कर जीना चाहिए। हाँ, मैं इसमें बिलीव तो करता हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुस्कुराहट निकल नहीं पाती है, कहाँ छुपी है उसकी तलाश में मैं भी हूँ सर। ऐसा तो ये नहीं कि जब आपको वो फाइनल लेटर मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर, तब आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी? मे भी हो सकता है सर। तो फिर तो ये तो गलत हो गया। फिर आप वो बढ़ावा देना चाहते हैं कि मंजिल पे जाके मुस्कुराओ, रास्ते में मत मुस्कुराओ। नहीं सर, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि क्या पता हाथ में लेके भी मुस्कुराहट आए या ना आए। मेरा मानना है कि हमेशा इस पल में जीना चाहिए और इसमें खुश रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। लेकिन पता नहीं मेरी तरबियत के साथ क्या हुआ या मेरे अपने लाइफ के साथ कैसा इसके साथ किया मैंने सलूक, तो उससे ये हुआ, धीरे धीरे मैं उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं आप, तो पहले से बेहतर अब मुस्कुराने लगे हैं आप? हाँ, मुस्कुराने लगे हैं, थोड़ा सा खुल के लोगों से बात करने लगे हैं, मिलने लगे हैं, तो इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर। अच्छा, हमारा देश हमारा है डाइवर्स्ड, कम्युनिटी है कई, तो क्या आपको लगता है कि ये एक सुरक्षित राष्ट्र है और यहाँ पे हर कम्युनिटी बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है? जी सर, मुझे लगता है कि भारत एक सुरक्षित राष्ट्र है और यहाँ पे सारे लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हम सब इक्वल हैं? आर्टिकल 14 सबको समानता की गारंटी देता है। अच्छा, संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में कौन सा ऐसा वर्ड है जो अमेंडमेंट के बाद शुरू किया, उसमें डाला गया? सर, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और एक और शब्द है जो सोशलिज्म, सोशलिस्ट, समाजवाद, उसके बाद सेकुलरिज्म, रिपब्लिक नहीं, रिपब्लिक तो पहले ही था। अच्छा, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और एक या मुझे फ्रेटर्निटी, ये 42वें संशोधन में डालेगा। अच्छा, इन तीनों शब्दों में से सबसे इम्पोर्टेंट शब्द आपको कौन लगता है? सर, मुझे लगता है फ्रेटर्निटी। क्यों? क्योंकि अगर फ्रेटर्निटी हो, अगर सच में जो फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है, अगर फ्रेटर्निटी हो तो सेकुलरिज्म अपने आप बहाल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि दोनों का कोर भाईचारा है। अगर फ्रेटर्निटी नहीं है तो आप सेकुलरिज्म को अप्लाई कर भी नहीं पाएंगे। और सोशलिज्म का भी जो मूल्य, जो भाव है, तो वो भी सहयोग की बात करता है कि सोसाइटी में हम सब मिल के रहते हैं, इसलिए सबको इक्वल होना चाहिए, किसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है उसका वो भी तभी आएगा जब भाईचारे वाली बुनियाद मजबूत होगी। तो आई फील फ्रेटर्निटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन प्रियम्बल। ओके, ठीक है, थोड़ा ये लॉन्ग हो गया, एग्जैजरेशन थोड़ा सा। हाँ, ओके। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चलता है आजकल, चल रहा है कि अब्रॉड स्टडीज़,
हाँ, जैसे लोग कनाडा जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ना चाहते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भारत राष्ट्र जो हमारा है बहुत सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित तरीके से यहाँ रह सकते हैं, फिर हमारे अंदर ये ट्रेंड ऐसा क्यों आ रहा है कि अब्रॉड स्टडीज़ यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे ख्याल से, इसके बारे में आपके क्या राय है? तो मुझे ऐसा लगता है इस मामले में कि एक बात ये तो है, जितनी भी रैंकिंग है 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड, उसमें भारत अभी बहुत पीछे है। अच्छा। हम सुधार कर रहे हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं। अभी जैसे गिफ्ट सिटी में जो यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाई जा रही है, बाहर के लोग भी आ रहे हैं, हमारे अपनी यूनिवर्सिटीज भी देश के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए अगर जिनके पास संसाधन है तो वो ऑक्सफोर्ड जा रहे हैं या कोई और अच्छी यूनिवर्सिटी में विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे लिहाज से ये अच्छा है। वो हमारे देश के लिए फ़ायदा है अगर वो ब्रेन ड्रेन ना बने, अगर उनको हम फिर से वापस ला पाएँ इंडिया में और उनके जो इंटेलेक्ट है उसका इस्तेमाल कर पाएँ, तो ये हमारे देश को फ़ायदा ही देगा सर। अच्छा, ठीक है मिस्टर शहन साहब, अच्छी बात कह रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ में ये देखा जा रहा है कि जैसे 4.3 या 4.2 मिलियन लोग अमेरिका में, वहीं पे 3.5 मिलियन लोग लगभग यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हैं। तो ये इस वजह से हो रहा है कि वहाँ हमसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, या इस वजह से हो रहा है कि एक बस हमारी मानसिकता है कि चलो फॉरेन चलते हैं? दोनों बातें हैं सर। अच्छा। ये भी बात है कि कुछ ऐसे भी विदेशों, मतलब ऐसे भी देश हैं जहाँ की सुविधाएं हमसे बेहतर हैं, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। दूसरी बात ये भी है कि बहुतों का माइंडसेट है कि मानसिकता ये भी होती है कि भाई इंडिया अपने देश में नहीं रहना, मुझे विदेश जाना। तो दोनों बातें हैं। अच्छा, आप तो अपनी कम्युनिटी के लिए बड़े कट्टर होंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये पाया गया है कि जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं उसके लोग काफ़ी कट्टर होते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो अपना देखने का नज़रिया है, तो मुझे हर समाज में, हर धर्म में, हर जाति में हर तरह के लोग मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन है, और किसी के परसेप्शन को मैं क्या कह सकता हूँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको मिल रहा है? हाँ, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी तो हमारे देश में है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि कट्टरता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप नकाब के बारे में, बुरखे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, लड़कियों की तालीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कैसे उस पे आप सुधार करेंगे? मुझे लगता है कि लड़कियों की तालीम होनी चाहिए। लड़कियों को आज वो समय नहीं है कि हम और आप पर्दे में उनको रोक पाए। तो तालीम तो लड़कियों को मिलना ही चाहिए, उतना ही जितना लड़कों को मिल रहा है। तो पर्दे के खिलाफ हैं आप? मैं पर्दा, बहुत तरह के पर्दे हैं, मैं पर्दे को रुकावट के रूप में लेता हूँ। अगर पर्दा रुकावट है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। पर वो रिलीजियस कोटेशन भी तो आएगा, फिर उसको आप कैसे टैकल करेंगे? फिर आप इसका मतलब पूरी रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ आप स्टैंड लेंगे? नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर नकाब या पर्दा, जिसको आप पर्दा कह रहे हैं, मैं उसको रुकावट के सेंस में देख रहा हूँ कि अगर पर्दा या हिजाब अगर लड़कियों की पढ़ाई में बाधा है तो ये गलत है। लेकिन अगर कोई लड़की, चाहे कोई लड़का हो, उसको पढ़ना है और वो कह रहा है मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, तो अगर रुकावट नहीं है, फैसिलिटेट कर रहा है, उसको सेफ्टी का फील दे रहा है, चाहे उसकी अपनी कोई धारणा है उस चीज़ को लेके, उसको अपने सिंबोलिज्म है उसका कोई, तो मैं लड़कियों के जो अधिकार है उनको किसी भी बाधा से दूर रखना चाहता हूँ, चाहे वो बुर्का हो या ना हो। जैसे भी कर्नाटक में एक सरकार बनी, उसने बुर्का हटाया स्कूल में जाने के लिए। अभी एक सरकार बनी, उसने फिर बुर्का शुरू कर दिया। मुझे इस पूरे मामले में लड़कियों को डिप्राइव नहीं करना चाहिए। अगर वो बुर्का पहन के भी पढ़ना चाहती हैं तो मुझे लगता है पढ़ने देना चाहिए। अच्छा। और मुझे लगता है कि अगर लड़कियों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर जहाँ पढ़ रही हैं, जहाँ वो जा रही हैं तालीम हासिल करने, तो वहाँ के जो नॉर्म्स हैं उनको भी अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा सा। तो क्या आप एक एसडीएम और डीएम होते हुए, कलेक्टर होते हुए, आप कैबिनेट सेक्रेटरी का रोल निभा सकते हैं? नहीं सर, नहीं निभा सकता हूँ। तो फिर आप पूरे नेशन को चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि आपकी ही राय क्यों मानी जाए? मैंने अपनी राय थोपी नहीं सर, आपने पूछा तो मैंने अपनी राय दी।
अब यहाँ पे आ गया, आपने पूछा तो अब है ना, ये वही निकाल रहा हूँ। अभी बहुत पोलाइटली चल रहा है, बड़ा आराम से चल रहा है। अब ये घसी, आप इसका मतलब, अब मैं आपको डिबेटिंग में ले जा रहा हूँ, आपको डिबेटिंग होना नहीं है। इसका मतलब कि आपके राय का सम्मान हो। आप एक कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, आप जो है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में बैठे हैं, आपकी ही कलम की लोग सम्मान करें, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि सर पूरे देश में जो एक लोकमत बने, जो संविधान कहता है वो काम हो सर। मुझे लगता है आप एक पॉलिटिकल माइंडसेट के इंसान हैं। सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं हूँ पॉलिटिकल माइंडसेट का। कि आपको लग रहा है कि ठीक है बुर्का हटा दिया या बुर्का दे दिया, तो ये कैसे आपने सरकार को क्यों कोट किया? नहीं, मैंने कहा कि दो सरकारों की दो अलग अलग पॉलिसी हैं, और दोनों में बात यह है कि सर कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समाज को भी बदलना पड़ेगा, कुछ सरकारों को भी मॉडरेट होना पड़ेगा। लेकिन लड़कियां है कि सर मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं खासकर, उनका भी पार्टिसिपेशन है, आप देख सकते हैं, शिक्षा से लेकर नौकरी तक। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उनके कोई भी सांस्कृतिक सिंबोलिज्म उनके विकास में बाधा ना बने। जेस्चर, हाँ, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनाना चाहते। हाँ। तो आप ये डायरेक्ट आपका साफ साफ कहना है कि बुर्का एक बाधा है? नहीं सर, मेरा ये मानना नहीं है कि बाधा है सर। तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये बाधा है और ये बाधा नहीं है? मैं ये डिसाइड उनको करने देना चाहता हूँ जो हिजाब पहनते हैं। अच्छा, और अगर वो अपने मन से पहनते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस आप कह रहे हैं? यस सर, मैं फ्रीडम ऑफ चॉइस कह रहा हूँ। ठीक है। आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, आप ठीक है, आपको आईपीएस या आईएएस में सिलेक्शन मिलता है, सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सर पहला कदम मैं दो काम करना चाहूँगा। पहला ये कि जो एक मजबूत ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम हो, और दूसरा ये कि जो आरटीआई एक्ट में जो प्रोएक्टिवनेस मांगी गई है प्रशासन से फाइलों को ऑनलाइन करने के, उसमें तेजी लाना चाहूँगा सर। अच्छा, भारत में अशिक्षा एक बहुत बड़ा जो है घर बना ली है, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पे कैसे काम करेंगे? सर शिक्षा पे जो भी सरकार की पॉलिसी होगी, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसको ज़मीन पे पूरी तरह से अमली जामा पहनाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही मैं जिस ज़िले में रहूँ तो वहाँ कोशिश करूँगा कि जो टीचर हैं वो टाइम पे आएँ, लड़कों को मिड डे सही से मिले, और मिड डे में जो भ्रष्टाचार है या मिड डे में जो अभी भी भेदभाव है, कुछ लड़कों को नहीं, कुछ कम्युनिटी के लड़कों को उसको डिप्राइव किया जाए है, तो उन सबको मैं दूर करना चाहूँगा। आपका किसी क्रिमिनल ने पैर काट दिया, आप पैर काट दिया तो सबसे पहले तो इलाज कराऊंगा सर, और दूसरी बात कि उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करूँगा। बढ़िया। टोन में लो हुआ है, लो हुआ है टोन, अभी ऐसा जा रहा है ना कि अब ये मांग रहा है कि थोड़ा कहीं कहीं चाहिए। हाँ तो वो मैं कर लूँगा, वो कर ले। हाँ पहले, हाँ बढ़िया जा रहा है, ठीक है, बढ़िया जा रहा है। चीज़ें जो है कि अब इस तरीके से सही जा रही है, और हमें जो है इन्हीं सब चीज़ों पे काम करना है। पोलाइटनेस भी आ रही है, और एक जगह आपने पकड़ा था किक, फिर वहाँ पे हाँ थोड़ा सा आ गए, ठीक है। इसी यही जो है ना बैलेंस, यही बैलेंस बना के बढ़िया। लुक बढ़िया है, ठीक है। अब ये जो बात कर रहे थे तो ठीक लग रहा है। नहीं ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ना पॉजिटिव वाइब आ रही है, आ रही है ना। अब ऐसा नहीं लग रहा है सहनसा मुझे रूल कर रहे हैं। हाँ तो ये बढ़िया चीज़ आ रही है। इतना ही करा दीजिए बस ठीक है, बढ़िया। अभी रोज ना ऐसे ही हाँ आप उकसाने वाले सवाल पूछिए। हाँ मैं पूछूंगा, अभी तो इसमें कम था खैर, हाँ, और इसमें पूछूंगा, कम था, और इसमें थोड़ा कम था, हाँ थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। मैं वही आज चेक किया, मैंने कहा कि था ठीक है, बढ़िया इंशाल्लाह। हाँ